Welcome students on the e-learning platform of St. Michael's Academy Betia. Myself Sanjay Gupta and I am going to teach you about science for class 7, chapter 13, transportation in animals and plants. Even this is my second video related to this chapter. In first video we have read about the mode of transport in animals and plants, in which we have seen that circulatory system is responsible for the transportation in animals and vascular system is responsible for the transportation in plants. Now in this video we are going to consider about circulatory system, and this circulatory system is conducted by three main system called blood vessels and heart. Further, blood is divided in two components, first plasma and blood cells or corpuscles, where corpuscles are also divided in two parts, RBC and WBC. RBC means red blood corpuscles and WBC means white blood corpuscles. You know that RBC is the main part of the blood which carries hemoglobin and oxygen, and it is the main blood which transports all the essential nutrients and oxygen to each and every cell of the body. White blood corpuscles is called soldiers of the body because it saves our body from the outer enemies as bacteria, some viruses and vice versa. Now about this we can get more knowledge from our book. So firstly we are going to read our book and try to get more knowledge. So start to read book. Circulatory system, परिसंचरण तंत्र. Circulatory system is the life support system that provides our body cells with food and oxygen. It takes away waste products from the body cell. जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि यह परिसंचरण तंत्र हमारे जीवन को एक सपोर्ट सिस्टम यानी एक सहारा प्रदान करने का तंत्र होता है, जिसमें हमारे सेलों को, हमारी कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति कराई जाती है और उन कोशिकाओं से बेकार पदार्थों को बाहर भी किया जाता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ वेसल्स विच कनेक्ट्स ऑल द सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टुगेदर. चूँकि यह एक पाइपलाइन की तरह हमारे शरीर में बिछा होता है और इसमें जो पाइप्स यानी वेसल्स होते हैं यह सेल, टिश्यू और शरीर के दूसरे अंगों से जुड़े होते हैं. पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. There are three main parts of the circulatory system: blood vessels and heart. So blood performs the action to carry oxygen and nutrients about which I told you earlier on board. So it is a fluid medium that transports substances. White blood vessels, in which arteries, veins and capillaries are the main part. They help to flow blood throughout the body, and heart pumps the blood into the blood vessels. So blood is a fluid connective tissue. It is a red colored viscous fluid that flows in the blood vessels. Blood has the following फंक्शन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि
खून क्या होते हैं? यह एक गाढ़े द्रव पदार्थ होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज के रूप में काम करते हैं। ये सेलों के पुंज होते हैं और यह गाढ़े और स्टिकी चिपचिपे होते हैं जो निम्न कार्य करते हैं। फर्स्ट, इट सप्लाइज फूड एंड ऑक्सीजन टू एवरी बॉडी cells. It removes waste from these cells. It helps in regulating body temperature and it protects body against infection. यानी ये भोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में करते हैं। यह कोशिकाओं से आने वाले वेस्ट मटेरियल्स को हटाते हैं। यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर को किसी संक्रमण से भी बचाते हैं। The blood has two components, plasma and blood cells or corpuscles. Plasma is a non-living liquid part of the blood. It is yellowish fluid that makes up more than half of blood volume. It removes carbon dioxide and waste from the cells. As plasma transports dissolved food to the cells, oxygen to the cells, enzymes, hormones and chemicals in the body. इस तरह से प्लाज्मा एक निर्जीव तरल पदार्थ होते हैं जो हमारे ब्लड का हिस्सा होते हैं। यह देखने में पीले कलर के होते हैं जो हमारे खून के टोटल मात्रा के लगभग आधे हिस्सों में पाए जाते हैं। इनका कार्य है कोशिकाओं में भोजन को घुलाना, हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, साथ में कई तरह के एंजाइम, हार्मोन और केमिकल्स को भी हमारे बॉडी में ले जाने का कार्य करते हैं जो ब्लड के थ्रू होता है और इसमें ब्लड की मदद करते हैं। ब्लड सेल्स और कार्पोसेल्स आर लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड। दे आर 3 काइंड ऑफ ब्लड कार्पोसेल्स। जबकि कुछ जो हमारे ब्लड के कोशिकाएं होती हैं इनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं। आरबीसी आर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, यानी ये ऐसे सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। देयर साइटोप्लाज्म हैज ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, यानी इसमें एक ऑक्सीजन को कैरी करने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है। इट गिव्स रेड कलर टू दीज कार्पोसेल्स। इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स। जैसा कि आपको मैंने बताया कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स ये न्यूक्लियस के बिना सेल होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होता है, और यह जो लाल रंग होता है हमारे खून का, इसमें ऑक्सीजन मिलने के कारण यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाते हैं और साथ में कुछ आयरन भी मिला होता है, इससे इसका रंग लाल होता है। और यह लालीपन किसके कारण आता है? हीमोग्लोबिन के कारण आता है। ये हमारे शरीर के कोशिकाओं में भोजन और ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करते हैं। आरबीसी लिव फॉर 90 to 120 डेज, यानी इनकी जिंदगी 90 से 120 दिनों तक की होती है। फिर वहाँ वे पुराने सेल्स हट जाते हैं और नए जो सेल्स मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यूज होते हैं आरबीसी वह आ जाते हैं। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स में WBCs आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दे हैव डिफरेंटली शेप्ड न्यूक्लियाई। चूँकि ये WBC अलग तरह के सेल होते हैं जो अलग अलग न्यूक्लियाई शेप्ड में होते हैं। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन संक्रमण से बचाते हैं। दे फाइट अगेंस्ट germs and also provide immunity against infection. Normally, there is only one WBC for every 600 RBC. चूँकि इनकी संख्या 600 रेड ब्लड कार्पोसेल्स लाल रक्त कणिकाओं
के बीच सिर्फ एक होती है, इसलिए इनकी संख्या हमारे शरीर में कम होती है। दी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स काउंट गोज अप व्हेन देयर इज एनी इन्फेक्शन इन दी बॉडी, यानी जब हमारे शरीर में संक्रमण हो जाता है तो वाइट ब्लड सेल्स की संख्या भी कम होने लगती है। WBC आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। एज अर्लियर आई टोल्ड यू कि हम इनको शरीर का सैनिक भी कह सकते हैं। एंड देन कम्स ब्लड प्लेटलेट्स, दे आर वेरी माइन्यूट सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ये हमारे शरीर में बहुत कम संख्या में उपस्थित होते हैं। दे हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लॉटिंग दी ब्लड। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है जब हमारे शरीर से चोट लगने पर खून निकलने लगते हैं तो इन खून को ये जमा कर देते हैं, जमा देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर कभी आप हर्टेड होते हैं तो जब ब्लड निकलता है आप उस जगह को अपनी उंगलियों से या किसी चीज़ से जब दबा देते हैं तो थोड़ी देर के बाद वहाँ बिल्कुल ब्लड आना बंद हो जाता है। और यह कार्य कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स करते हैं, और इस तरह से हमारे शरीर की रक्षा होती है। स्टूडेंट्स, यू कैन ऑल्सो सी द पिक्चर ऑफ RBC, WBC and blood platelets. So here we are concluding this chapter, and in the next video we shall learn about blood vessels, in which we can know about arteries and veins, which are the part of blood vessels. Till then, thank you.